السلام علیکم ناظرین، خبر کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد اسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں خبر کشمیر کی ہیڈ لائنز پر۔ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، راجیہ سبھا میں آپریشن سندور پر مباحث میں وزیر خارجہ کا بیان۔ پونچھ سیکٹر میں لشکر طیبہ کے 2 دہشت گردوں کو مار گرانے کا دعویٰ، جائے وقوع سے 3 ہتھیار بھی کیے گئے برآمد۔ لداخ میں ایک فوجی قافلے کی گاڑی مٹی کے تودے کی زد میں آنے کے بعد تباہ ہو گئی، لیفٹیننٹ کرنل سمیت 2 فوجی اہلکار جاں بحق، 3 دیگر زخمی۔ ڈی ڈی سی ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے آج اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، پارٹی صدر سید الطاف بخاری نے کیا استقبال۔ اور شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع میں دلخراش سڑک حادثے میں ایک ٹیچر کی موت، ضلع کے راجوار ہندوارہ علاقے میں پیش آئے حادثے میں 30 سے زائد افراد زخمی۔ اور ناظرین، پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ضلع پونچھ کی سرحد سے متصل پنچایت کوسلیہ میں گزشتہ رات مقامی فوج نے ایس او جی پولیس کے ہمراہ مل کر سرچ آپریشن چلایا۔ اس دوران دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کی نقل و حرکت محسوس ہونے پر سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہوا، جس میں 2 دہشت گردوں کو مار گرایا گیا ہے۔ یہ علاقہ سرحد کے بالکل عین قریب ہے، اس لیے علاقے میں ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ انکاؤنٹر سے متعلق مزید سرکاری اطلاع آنے کا انتظار ہے۔ آکاشوانی کی اطلاع کے بموجب جموں کشمیر میں ایک بڑے انسداد اندازی آپریشن میں سیکورٹی فورسز نے پونچھ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کو پار کرنے کی کوشش کرنے والے لشکر طیبہ کے 2 دہشت گردوں کو مار گرایا۔ یہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب فوجیوں نے آج صبح سرحد کے ساتھ مشکوک نقل و حرکت دیکھی۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں دہشت گرد مارے گئے۔ یہ انکاؤنٹر 22 اپریل کو پہلگام حملے میں ملوث دہشت گردوں کے حالیہ خاتمے کے بعد ہوا ہے۔ جائے وقوع سے 3 ہتھیار بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کی ایوان بالا راجیہ سبھا میں آپریشن سندور پر بحث اور اپوزیشن کا احتجاج جاری ہے۔ اپوزیشن بہار میں ایس آئی آر معاملے پر احتجاج کر رہی تھی۔ احتجاج کو دیکھتے ہوئے ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ اس بیچ راجیہ سبھا میں آپریشن سندور پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آپریشن سندور کے دوران مسلح فورسز کی کارکردگی اور صلاحیتوں کی ستائش کی اور کہا کہ اس کے نتائج نے ملک کو فخر سے ہمکنار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے پس پشت مقصد جموں کشمیر کی معیشت کو تباہ کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد ریاست کی معیشت معمول پر آ گئی تھی اور خوشحالی کا ماحول واپس آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلگام حملے کے بعد سیکورٹی سے متعلق کابینہ کا فیصلہ یہ تھا کہ سندھ آبی معاہدے تب تک معطل رکھا جائے جب تک پاکستان دہشت گردی کی حمایت سے مکمل طور پر دستبردار نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ عوام کو گزشتہ 60 برسوں تک یہی بتایا جا رہا تھا کہ جواہر لال نہرو کی غلطی کو درست نہیں کیا جا سکتا، لیکن نریندر مودی حکومت نے دکھا دیا کہ اسے درست کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے 1947 سے سرحد پار دہشت گردی کا سامنا کیا ہے اور خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ سر، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں وہ کان کھول کے سن لیں کہ 22 اپریل سے 16 جون تک ایک بھی فون کال پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مودی کے بیچ میں نہیں۔ ہند پاک کے درمیان سیز فائر سے متعلق امریکی صدر
ट्रंप के ताज़ा दावे पर लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। राहुल गांधी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले पर खामोश हैं, क्योंकि अगर वो कुछ बोलते हैं तो ट्रंप पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रख देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सबको मालूम है कि क्या हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म बोल नहीं पा रहे हैं। अगर वो बोलेंगे तो ट्रंप खुलकर सच बोल देंगे, इसीलिए वो खामोश हैं। ट्रंप बार बार एक ही बात इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में तिजारत के किसी माहदे में नरेंद्र मोदी को दबाव में रखा जा सके। अब देखना है कि कैसी ट्रेड डील बनेगी। ट्रंप लायर है, फिर भी पीएम नहीं बोले। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी में हिम्मत नहीं कि वो अमेरिकी सदर को जवाब दे सकें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तंज किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि मैंने कल ही कहा था कि मेरी तकरीर के अख्ताम तक ट्रंप के बयान की गिनती 30 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयानात से लगता है कि दाल में कुछ ज़रूर काला है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस तरह की बकवास बर्दाश्त कर रहे हैं। पर फिर कह दिया कि उन्होंने वॉर रुकवाई। अरे मैं कल ही कहा था आपको, मेरे भाषण समाप्त होने तक 30 दफा हो जाएगा। तो वो बोलते रहा, इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, और हम इसको सहन नहीं करेंगे। वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। और हमारी पॉलिसी ये रही कि जब हमारी पॉलिसी ये है, कोई थर्ड पर्सन्स हमारे बीच में निगोशिएशन करने के लिए हमने कभी माना नहीं, और आज भी हम नहीं मानते। इन्होंने कैसा माना, क्यों माना, क्या कमजोरी है, ये सब देश को बताना चाहिए। 2 घंटे भाषण में कभी ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला? हम तो इतना हंगामा कर रहे सभी लोग, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं। उसको एक दो दफा उनका नाम लेके सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे इमेज को खराब करने के लिए, देश के इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये मैं कंडम करता हूं। जम्मू कश्मीर गांदरबल की एक आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बस जवानों को ले जाने के लिए जा रही थी कि वो फिसलकर दरिया में गिर पड़ी। ड्राइवर को मामूली चोटें आईं और उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बस को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ थी और बस को बाहर निकाला गया। खुशकिस्मती से एक बड़ा हादसा इसलिए टल गया क्योंकि बस में कोई जवान सवार नहीं था। इलाके में शदीद बारिश के बायस दरियाए तावी में पानी की सतह बुलंद हो गई है। बुध के रोज लद्दाख में एक फौजी काफिले की गाड़ी मिट्टी के तोदे के जद में आने के बाद तबाह हो गई। हुक्काम ने बताया कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 फौजी एहलकार हलाक और 3 दीगर जख्मी हुए हैं। एक एहलकार ने बताया कि वाक़या आज 11:30 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब काफिला डरबुक से चौंगताश की तरफ जा रहा था। मरने वालों की शनाख्त लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया और एनके दलजीत सिंह के तौर पर की गई है। दोनों सिंध हॉर्स के रहने वाले हैं। जख्मी मेजर मयांक शुभम, मेजर अमित दीक्षित और कैप्टन गौरव को इलाज के लिए लेह के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुक्काम ने बताया कि मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। डीडीसी तुराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कई साथियों के हमराह पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में यहां आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। एक तो सियासी इनका कैरियर जो है सो है, वो तो सबके सामने आपके। दूसरा ये हमारा छोटा भाई है, हमने साथ काम किया है। मुझे खुशी है आज अब इसने ये जमात, हमारी जमात ज्वाइन की है। इंशाल्लाह मुझे लगता है
एक साथ मिलके हम लोगों की बेहतर खिदमत कर सकेंगे। मेरे लीडरों ने फैसला किया, हम 6-7 महीने से कर रहे थे कि कहीं, क्योंकि जिस पार्टी ने के साथ मैंने इलेक्शन लड़ा था उस पार्टी को ना वो रजिस्टर्ड थी, ना उनके पास कोई ऑफिस था, ना वहाँ कोई सुनवाई थी। हालांकि एक मेंबर पार्लियामेंट और एक एमएलए था, लेकिन पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। जब मैंने अपने इन लीडरों के साथ बात की तो इन्होंने मुझे कहा कि जो हमारे हुकूक की लड़ाई है वो हम अपनी पार्टी के साथ ही मिल के लड़ सकते हैं, खासकर जो हमारे नौजवान जेलों में हैं या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। क्योंकि ये जो बाकी पार्टियां थी इन्होंने 35 से और 370 पे बहुत सारे लोगों को गुमराह भी किया, वोट भी लिए, गवर्नमेंट भी बनाई, लेकिन आज यही बोल रहे हैं स्टेटहुड दे दो, यही बोल रहे हैं। आज आप देखा, आज हमारे एमएलए साहिबान क्या मांग रहे हैं? तनख्वाह, सीडी फंड, और क्या कहते हैं, हमारे सीडी फंड को टेंडर नहीं होना चाहिए। हम डीडीसी मेंबर हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ी, 5 साल से हमारे कामों को टेंडर हो रहा है। अगर इनके कामों को टेंडर होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये इनका जो इंटेंशन है, जो ये इलेक्टेड एमएलएज आए हैं वो सामने है, जो गवर्नमेंट है इसका इंटेंशन सामने है। आप एक बड़े मिशन से एक तनख्वाह पे पहुंच गए। आप आज क्या कहता है एमएलए? मुझे जी तनख्वाह चाहिए। तो आप वही देख सकते हो, जो लोग अपने लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों और पेंशनों के लिए बात कर रहे हैं, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एटलीस्ट जहां से 2020 से जो पार्टी बनी है, जो अल्ताफ साहब ने उस दिन बात बोली, आज भी उसी बात पे कायम दायम है। आज भी कहते हैं जो हमें निकलेगा अपने मुल्क से निकलेगा, उसके साथ नेगोशिएशन करनी है। जो भी बैठा होगा ये एक तख्त होता है, हिंदुस्तान का एक बादशाह बनता है, चाहे वो बीजेपी से बने, वो कांग्रेस से बने, हमें उन्हीं के साथ बात करनी है जब हमें अपनी मिजरीज की। ये तो त्राल के जो इश्यूज़ हैं, खासकर हमारे नौजवान बंद हैं, अल्ताफ साहब ने मुझे एश्योर किया, पूरी पार्टी ने इन्होंने, कि हम उनकी भी बात करेंगे, जो हमारे कैदी बाहर हैं उनके लिए भी बात करेंगे। जो भी जेन्युइन तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और लीगल तरीके से बात होगी, हम इसमें कोई उस तरह की बात नहीं है कि हम सड़कों पे निकलेंगे। हम पूरे कानूनी तरीके से, मैं एक पार्टी में शमूलियत की तो इंशाल्लाह इनके साथ अल्लाह ताला की मर्जी होनी चाहिए, गुरु महाराज की मर्जी होनी चाहिए, त्राल के लोगों के लिए काम करूँ। आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं कश्मीर क्रांति न्यूज के साथ में, मैं हूं शबकल। आपको बता दें कि आज अपनी पार्टी में जो है हरबख्श सिंह जो है उन्होंने ज्वाइन कर दिया है। वहीं पर मैं आपको हरबख्श सिंह के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये पहले जो है पीडीपी पार्टी में जो है स्पोक्स पर्सन पहले हुआ करते थे। उसके बाद में इन्होंने पीडीपी को छोड़कर जो है एआईपी पार्टी ज्वाइन कर दी थी। जी हाँ, इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है एआईपी, उन्होंने वो ज्वाइन, अवामी इत्तेहाद पार्टी जिसको कहा जाता है, वो ज्वाइन कर दी थी। लेकिन आज जो है उन्होंने अपनी पार्टी का हाथ थामा। जब उनसे हमने बात की, उनका ये मानना था कि अपनी पार्टी ही वाहिद ऐसी पार्टी है जो लोगों के मसाइल हल कर सकती है। स्टेटहुड की बात हो या फिर जेलों में जो बंद पड़े यहाँ के कैदी हैं, उनके बारे में तर्जमानी अगर कोई कर सकता है तो वो अपनी पार्टी कर सकती है। बाकी पार्टियों के बारे में वो सिर्फ बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन काम कोई भी ढंग से नहीं करते हैं। एआईपी पार्टी के बारे में उनका मानना था कि जो ये पार्टी है, इनका यहाँ पर कोई ऑफिस भी नहीं है, और अगर हम अपनी बात बताएं तो कहाँ पर बताते, इसलिए वो पार्टी छोड़कर आज उन्होंने जो है अपनी पार्टी का हाथ थामा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट में। आप बने रहे हमारे साथ में, देखते रहिए कश्मीर क्रांति। शुमाली कश्मीर के कुपवारा ज़िले में बुध की सुबह एक दिलखराज सड़क हादसे में एक टीचर की मौत वाक़ हो गई। ज़िले के राजवार हिंदवारा इलाके में पेश आए इस हादसे में 30 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मी होने वालों में स्कूली तलबा और तालिबात भी शामिल हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब स्कूली तलबा और तालिबात और अमले से लदी एक मुसाफिर बरदार बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पलट गई। हादसे में ज़ख्मी हुए शहरियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू करके मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनका तिब्बी मुआयना और इलाज किया जा रहा है। मौलजीन के मुताबिक हादसे में शदीद ज़ख्मी हुए बस ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। उधर हादसे की तला मिलते ही ज़िले तरक्याती कमिश्नर कुपवारा आयुषी सोदन, एसएसपी हिंदवारा मुश्ताक अहमद और डीडीसी चेयरमैन समेत ज़ख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। एमएलए लंगीट खुर्शीद अहमद शेख ने भी अस्पताल पहुंचकर ज़ख्मियों की इयादत की। डीसी कुपवारा ने मीडिया से बात करते हुए हादसे को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि फौत हुए टीचर के लवाहिकीन और ज़ख्मियों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हादसे की वजूहत जानने के लिए तहकीकात शुरू की जा चुकी हैं। पुलिस ने ज़िम्मन में केस दर्ज कर लिया है। उधर मुकामी लोगों ने सड़कों की खस्ताहाली पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में हर साल सड़क हादसात में सैकड़ों अफराद की मौत वाक़ हो जाती है।
कुलगाम के चावलगाम इलाके के रिहायशियों और दुकानदारों ने एक नए तामीर शुदा पुल के दोनों सरों पर सड़क के नामुकम्मल काम पर तशवीश का इजहार किया है और रोड्स एंड बिल्डिंग्स R&B डिवीजन कुलगाम पर जोर दिया है कि वो हिफाजत को यकीनी बनाने और इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें। अगरचे ये पुल का काम चंद माह कबल मुकम्मल हो गया था, लेकिन कच्चे रास्ते अब गैर मुतवक्का मसाइल का बाइस बन रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि पुल के सरों से ढीले पत्थर और यहाँ से गुजरती गाड़ियों के नीचे फंसकर करीबी बाजारों में जा रही हैं और शीशे की खिड़कियां टूट रही हैं, दुकानों को नुकसान पहुंच रहा है। एक मुकामी दुकानदार ने कहा कि जब पुल का काम मुकम्मल हुआ तो हम काफ़ी खुश थे, ये सोचकर कि इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अब टूटे हुए डिस्प्ले और टूटे हुए शीशे के पैनल्स की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। ये पैदल चलने वालों के लिए भी हिफाजती खतरा बन गया है। ताजरों ने सड़क हादसात के इम्कान के बारे में भी खबरदार किया, क्योंकि नाहमवार और फिसलन वाली सतह खास तौर पर बारिश के दौरान दो पहियों और पैदल चलने वालों के लिए खतरा है। R&B डिवीजन कोलगाम के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AEE प्रिंस अहमद ने इस मसले को तस्लीम किया और इंतजामी मंजूरी मिलने के बाद फौरी कार्रवाई का तयख्खुन दिया है। प्रिंस अहमद ने कहा कि हम कारोबारी बिरादरी और रिहायशियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तामीराती मरहले के दौरान ताउन किया। पुल के दोनों सरों की मैकेनाइजेशन पहले से ही प्रोजेक्ट के दायरेकार का हिस्सा है। हम हतमी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद काम को तेज़ी से अंजाम दिया जाएगा। वकीलों ने महकमे से दरख्वास्त की है कि इमलाक को मजीद नुकसान और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इस मामले को फौरी तौर पर हल करें। बनो R&B कदल आज जरियत बनो कदल मगर अथान पे मैगडमाइज कर ये गई वारिया प्रॉब्लम ये बहुत ये दुकानदार कि मेरे दुकान अक्सर मे फेमत लगित अत हसा गो नबर कन शीशे अत बस कून वारिया बड़ कून अगर से इंसान डायरेक्टली से कून आए तमिस मे वारिया टेब तमिस जख्मी गुमुत अतन बे ब्या पड़ोसी ये इम्तियाज अहमद भट्ट साहब अमिस आव अंदर कन शीशस कन बेकरी कन अमिस आय शीशस ये कून अमिस तु शीश अंदर ये गोस मैगडमाइज गन जल्दी जल्दी विदिन 2 days या 3 days गस मैगडमाइज ये ऑर्डर त्रो सारे मैगडम त्रो गोड़ वारिया कोचन वो मगर ये मेन ये टाउन सवाल गुम कि यथान मैगडम ये त्रावन यह कनेक्ट कर 2-3 डिस्ट्रिक्टन कदल 2-3 डिस्ट्रिक्टन कनेक्ट पान वही मस्जिद नजदीक दितुक ये कदल अत ना त्रोक मैकडम वैकडम क्या अम कन नीर रात फुट शटल तक अगर इंसान आया कन इंसान ग खत्म अतन ये गड़त तथान दोन दुकानदारन तक गो माल वाल खराब अस बन अतन शटल त्रावन यल कहें अस जबरदस्त सख्ती सड़क दूर रोजान ये गाड़ी अत चलान तारो तल कन नीर शुरिस यी या इंसान बड़िस यमिस कन यी सह ग खत्म दपान अत तो मैकडम कह सफाई तो अम सहूलियत। रिसेंटली पता है कि हमने ये पुल ये तो बहुत मुश्किल से ये 217 से ये पेंडिंग था, तो फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जो यहाँ पे हमारे फोर्सेज हैं उनके साथ, तो उनसे हमने NOC ला के तो फिर हमने ये रिसेंटली में विंटर में ये ब्रिज हमने कंप्लीट किया। ये बड़ा क्रूशल ब्रिज था, वहाँ पे जो मुश्किल भी बनाना था, मगर अल्लाह ताला की मदद से हम इसमें सक्सेसफुल हो गए। अब आपकी बात सही है कि जो इसके अब अप्रोचेस है वो थोड़ा 15 मीटर अप स्ट्रीम है, 15 मीटर डाउन स्ट्रीम है, वो तो अप्रोच हमने बनाने हैं इसमें, वो ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैग्डमाइजेशन करना है। हमने इसको पार्ट होल में हमारा एक प्लान होता है, उसमें हमने इसको रिफ्लेक्ट किया है। जो ही वो अप्रूव होके आएगा तो इसका वो मैग्डमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये तो सही है कि वहाँ पे जो दुकानदार हजरात हैं, जब हमने ब्रिज शुरू किया था तो उन्होंने बेचारों ने दुकानें बंद की थी कि उसका उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। वहाँ पे वो ये कह रहे थे कि अगर हमें 1 महीने के लिए भी दुकानें बंद रखनी पड़ेंगे मगर ये ब्रिज बनना चाहिए, तो हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमसे कोऑपरेट किया है। तो हम उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि आप थोड़ा सब्र कीजिए। जो ही हमारा ये पार्ट होल वहाँ से, ये तो हमने पेराटी पे रखा है, मतलब सारा छोड़ के हमने ये पेराटी पे रखा है। जो ही वो अप्रूव होके आएगा तो उनको मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि इसका हम 7 ही दिन टेंडर में रखेंगे और इसका वो पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB ने महकमे सेहत व तिब्बी तालीम में 621 काली आसामियों को पुर करने का फैसला किया है। सिलसिले में बोर्ड ने भर्ती के लिए बाकायदा इश्तिहार भी जारी कर दिया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक JKSSB को महकमे सेहत व तिब्बी तालीम की जानिब से मुख्तलिफ ओहदों पर बराह रास्त तकर्रुरी की दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं और अब इन तमाम आसामियों पर बराह रास्त भर्ती के जरिए तकर्रुरी अमल में लाई जाएगी। अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरखास्तें 5 अगस्त 2025 से तलब की गई हैं, जबकि दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख
3 सितंबर 2025 मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहलियत, मेयार और दीगर शराइत व ज़वाबित के बारे में मालूमात बोर्ड की सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। महकमा सेहत की वज़ीर सकीना इट्टू ने समाजी राब्ता वेबसाइट एक्स पर अपने एक पैगाम में कहा कि वज़ीर आला के विजन के तहत सेहत के शोबे को मजबूत बनाने और नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए हम इंतहाई मसरत के साथ महकमा सेहत और तिब्बी तालीम में 621 आसामियों की भर्ती का ऐलान कर रहे हैं। ये इक़दाम न सिर्फ जम्मू कश्मीर में सेहत की सहूलियात को फ़रोग़ देगा बल्कि नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा करेगा। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा की जानिब से पुलवामा के कुंड इलाकों के लिए पहली मरतबा अंगशा हाथ मेले का इनेकाद किया गया। बाग सिंगरवानी में असम्बली के रुकन राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने 7 रोज़ तक जारी रहने वाले इस मेले का इफ्तिताह किया। मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से खुसूसी स्टॉल्स कायम किए गए थे। स्टॉलों के जरिए मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के हवाले से आम लोगों को जानकारी फराहम की जा रही है ताकि लोग इन स्कीमों से मुस्तफ़ीद हो सकें। रुकन असम्बली ने कहा कि एनसी हुकूमत की कोशिश है कि कुंडी इलाकों में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए स्कीमें राइज की जा रही हैं। डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, तो इस जो आजकल ये प्रोग्राम है, आज का ये प्रोग्राम है आकांक्षा हाथ, इसके जरिए हम अपने सारे स्कीम, सारे प्रोग्राम जो हमारे डिपार्टमेंट में है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि हम वैक्सीनेशन जो हमारा चल रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव, क्या वो चल रहा है ठीक ठाक, जो हमारा प्रोसेसिंग का चल रहा है, जैसे फूड प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोसेसिंग, उसके बारे में भी हम जानकारी दे दें। और जो हमारा सब्सिडाइज्ड जो स्कीम्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो हम इनको देना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं, और इसी जरिए कि आकांक्षा हार्ट के जरिए हम ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, जो ये पहली बार बाग सिंगरवानी में एक आकांक्षा हार्ट ये प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं, तो हम ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमें यहाँ पे बहुत सारे स्टार लगे हैं, कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से हमें, और बहुत सारी स्कीमें हैं यहाँ पे, उन स्कीमों का हमें लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो इसका हम तहदिल से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और ऑनरेबल एमएलए ने इसका इब्तिदा किया, यहाँ पे आके उन्होंने रिबन काटा, यहाँ पे वो यहाँ पे कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए, उनका भी हम तहदिल से शुक्रिया करते हैं। और यहाँ देखिए, जो NRLM ने जो यहाँ प्रोग्राम रखा है, सबसे पहले ये हमारे राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को सारों हर एक किसी को मुबारकबाद है, क्योंकि यशगोजा का जो हमारा ब्लॉक है ये सारे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर इस वक्त आया है इस उम्मीद के सिलसिले में। यहाँ जो इस वक्त जो स्टाल लगे हुए हैं, तो ये तो सिर्फ ये एक कोशिश है कि जो हमारी जो 50% की आबादी है, जो हमारी मस्तूरात है, जो घरों में बैठी है, उनके पास जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसको टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश करनी है और उस हुनर को बाहर निकालने की कोशिश करनी है, ताकि वो हुनर जो घरों में बैठी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हुनर अगर इस वक्त हम देखेंगे, सबसे ज्यादा टैलेंट अगर हम देखेंगे, तो आप देखोगे जो घर में बैठी औरतें हैं उन्हीं के पास होता है। वो उसका जो शाल का काम कर सकती है, वो जो शाद का काम कर सकती है, दूसरे काम कर सकती है। उस हुनर को लोगों तक, बाकी दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो NRLM ने यहाँ जो काम किया है, उसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्तहिक है। और मेरी यही गुजारिश है उनसे और कि अगर आज यशगोजा ब्लॉक इस सिलसिले में दूसरे नंबर पर आया है, इस तरह काम करे कि आगे जो यशगोजा ब्लॉक सारे हिंदुस्तान में पहले नंबर पर आए। रुकन असम्बली अनंतनाग पीरजादा M सैयद ने लाइजलबल अनंतनाग का दौरा किया और मुख्तलिफ अवामी मसाइल का इस मौके पर उन्होंने जायज़ा लिया और मुकामी लोगों से बातचीत भी की। ऐसे हालात पैदा होती हैं कि यहाँ चल नहीं सकते हैं और बिल्कुल सड़क बंद होती है, ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, कुछ नहीं, बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की। ये बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ, गुंजान पॉपुलेशन है यहाँ। इसमें आज तक हर डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे पास नहीं है। मैंने पहले इरिगेशन वालों को भी कहा, UD वालों को भी कहा, फ्लड कंट्रोल वालों को भी कहा और इरिगेशन वालों को भी कहा, सब डिपार्टमेंट को, सब ने ये बात कही कि हमारे पास नहीं है ये। और नतीजा ये इलाका बिल्कुल जिसमें बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन है, इग्नोर हुआ है, बुरी तरह से इग्नोर हुआ। मैंने इनको आज हदायत दी इरिगेशन वालों को कि आप मेहरबानी करके DPR बनाइए, इसमें प्रोजेक्ट बनाइए और मैं गवर्नमेंट से इस्तेदा करूं कि इसमें पैसा मिले हमें
और ताकि ये ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये नहर का जो मसला है, नाले का मसला है, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाए। खराब मौसम के पेश नज़र हुक्काम ने 31 जुलाई को भगवती नगर जम्मू से किसी भी काफिले को कश्मीर की जानिब रवाना न करने का फैसला लिया है। ऑफिसर्स का कहना है कि अमरनाथ यात्रियों के काफिले की मुअत्तली का फैसला खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र लिया गया है, जिसका मकसद यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है, क्योंकि यात्रा रूट्स पर शदीद बारिश के बायस सूरत हाल खराब हो चुकी है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार के मुताबिक यात्रा रूट्स के इलाकों में शदीद बारिशों के सबब बेस कैंप से यात्रियों के अमरनाथ गुफा तक की रवानगी मुतासिर हुई है। लिहाजा एहतियाती तौर पर 31 जुलाई को भगवती नगर जम्मू से बलतल और नॉन-1 बेस कैंप की तरफ किसी भी काफिले को रवाना होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि यात्रियों को वक्तन फ़ौक्तन मौसम वगैरह के बारे में अपडेट रखा जाएगा। दरियासना हुक्काम ने यात्रा पर जाने वाले अफराद से अपील की है कि महकमा मौसमियात और सरकारी हिदायत पर अमल करें और खुद सफ़र करने से गुरेज करें। वाज़ेह है कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई और हुक्काम के मुताबिक अब तक 3,93,000 से ज़ायद यात्री अमरनाथ गुफा में दर्शन कर चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोकने में अपने किरदार का दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान मेरा दोस्त है, उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर पाकिस्तान के साथ जंग रोक दी थी, लेकिन तिजारती मुआहदा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हिंदुस्तान ने तकरीबन हर मुल्क से ज़्यादा महसूलात आयात किए हैं। अमेरिकी मीडिया में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने आज फिर कहा कि अगर हिंदुस्तान के साथ तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया तो हिंदुस्तानी मसनूआत पर 25% तक दरामदी महसूल टैरिफ आयद किया जा सकता है। उनसे पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान पर 20 से 25% टैरिफ लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हिंदुस्तान मेरा दोस्त है, उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर पाकिस्तान के साथ जंग रोक दी थी, लेकिन तिजारती मुआहदा भी मुकम्मल नहीं हुआ है। हिंदुस्तान ने तकरीबन हर मुल्क से ज़्यादा महसूलात आयद किए हैं। India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? They are going to pay 25%. Yeah, India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's they're my friends, and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? I don't know. I'm asking you. Did I do a good job in that one? I did a good job in about 5 different wars. You think I'll get credit for it? No. So, will I get credit for it? She'll say yes. No. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. मुल्क भर में मानसून सरगर्म है, कहीं बारिश है, राहत है, तो कहीं ये आफत बनकर लोगों पर बरस रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार तक शहर शहर शदीद बारिश से बेहाल हैं। कई जगहों पर सड़कें तालाब बन गई हैं, तो कहीं दुकानात और मकानात सब पानी में डूब गए हैं। पहाड़ी के मैदानी इलाकों में भी कई जगह सैलाब के हालात बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इन बारिशों के बायस रियासत के दरिया तावी में आबी बहाव में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर मुबाहिस में वजीर खारिजा का बयान। पूंछ सेक्टर में लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों को मार गिराने का दावा, जाए वक़्त से 3 हथियार भी बरामद किए गए।
लद्दाख में एक फौजी काफिले की गाड़ी मिट्टी के तोदे की जद में आने के बाद तबाह हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 फौजी एहलकार जाँ बहक, 3 दीगर जख्मी। डीडीसी तोराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने किया इस्तकबाल। और शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले में दिलकरार सड़क हादसे में एक टीचर की मौत। जिले के राजवार हिंदवार इलाके में पेश आए हादसे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी। और नाज़रीन से के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।